So hi everyone, it is second lecture of chapter 4, that is moving charges and magnetism. Some of the parts we have discussed in the yesterday's lecture. It is lecture 2. So we have covered the magnets and the properties of magnet in yesterday's class. Coulomb's law of magnetic force, magnetic dipole and dipole moment, torque on a dipole in a magnetic field. Now we will cover the remaining topics. Yes. The next topic that we have is magnetic field lines. Just like in electrostatics, we have studied about the electric field lines, right, Jatin? Okay. So what are electric field lines? The imaginary straight or the curved lines around a charge in which if we draw a tangent, it gives a direction of electric field intensity. Electric field lines start from a positive charge and they terminate at the negative charge. If we talk about a dipole, they start from positive and end at नेगेटिव चार्ज. ऐसे ही हो रहा था. और आइसोलेटेड चार्ज की बात करोगे, इन केस ऑफ आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट इंफिनिटी, है ना. इन केस ऑफ आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज दे स्टार्ट फ्रॉम इंफिनिटी एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज, है ना. दीज आर द प्रॉपर्टीज, दे नेवर क्रॉस ईच अदर. इफ द electric field lines are crowded, at that point the strength of electric field is stronger, right? So these are the properties of electric field lines. Similarly, these are magnetic field lines. Okay, so magnetic field lines are the imaginary lines. So these are imaginary curved lines. Imaginary curved lines at which if we draw a tangent, it gives the direction of magnetic field at that point. Yeah, magnetic field intensity at that point. So these are imaginary lines across a current carrying conductor or a magnet. Everyone pay attention on the board. So this is our bar magnet. How the magnetic, what is the pattern of magnetic field lines across it? The direction outside the magnet is from north to south. Okay? Outside the magnet, the direction is from north to south, and inside the magnet, the direction is from south to north. They form a closed loop. Electric field lines do not form a closed loop. वहाँ पे closed loop नहीं बन रहा था, but here closed loop is formed. ठीक है? So outside the magnet, the direction is north to south, and inside south to north. So these are magnetic field lines. If we talk about the properties of magnetic field lines, then what are the different properties? Number one, they start from their direction outside the magnet. Their direction outside the magnet is from north to south. Okay? And inside the magnet, their direction is from beta south to north, right? The direction is from north to south outside the magnet, and inside the magnet the direction is from south to north.
Second property, they are continuous and form closed loops. They are continuous and form closed loops. राइट, तो क्लोज लूप बन रहा है ना बेटे, नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ, ये एक लूप हो गया, एक ही नीचे लूप है. सो दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, नहीं बनाती ना. ठीक है, दे ओनली स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड दे एंड एट नेगेटिव चार्ज, वापस नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं आएंगी. ठीक है, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, दे फॉर्म क्लोज्ड लूप. थर्ड, they do not intersect with each other. Yeah, two magnetic field lines do not cross or intersect each other at a point. Intersect each other at a point. Why? Because two different directions are not possible at a point. जैसे this is a magnetic field line. If I draw the tangent, so this tangent gives the direction of the magnetic field at that point, है ना. अगर क्रॉस करेंगी तो क्रॉस कैसे करेंगी, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है. अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें इन पे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे इस पॉइंट पे इधर किया, ये तो एक ही पॉइंट पे दो डिफरेंट डायरेक्शंस में तो टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा, है ना. So two different directions are not possible at a point because two different directions are not possible at a point. Are not possible at a point. ठीक है, so two magnetic field lines, also the electric field lines can't cross or intersect each other. Next, crowded the magnetic field lines, stronger the magnetic field, stronger the magnetic field at that point. The magnetic field at that point. This is a property also we studied in electric field lines, है ना, कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर होती हैं, पास होती हैं, वहां पे द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के केस में एंड मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से स्ट्रॉन्गर, है ना. वी ऑल्सो डू अ क्वेश्चन कि अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म में तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इक्वी डिस्टेंस एट ईच अदर या विद ईच अदर. दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. सो एट एवरी पॉइंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज सेम. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी किसके लिए है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है. दिस इज नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कहीं पे कम है. इफ वी कंसीडर दिस पॉइंट एंड दिस वन पॉइंट, ठीक है, here magnetic field is BA, here the magnetic field is BB. So which one is greater? Which one magnitude is greater? BA. ठीक है, why the magnitude of the magnetic field at point A is greater than the magnitude of magnetic field at point B? Because here the magnetic field lines are crowded, they closer to each other in comparison to this point. तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी वहां पे स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा होगी. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी है एंड सेम फॉर द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज. एनी अदर प्रॉपर्टी? These are some main properties about the direction. कि you can also include one more property कि if we draw a tangent, it gives a direction of magnetic field intensity at that point. अगर हम tangent से हम direction find out कर सकते हैं उस particular point पे about the magnetic field intensity. ठीक है.
Next we have magnetic field of a bar magnet at an axial point. This electric field we studied in electrostatics. What is electric field? The field around a charge. Then electric dipole we have studied in electrostatics. What is electric dipole? A pair of equal and opposite charges. एक साइड नेगेटिव चार्ज है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज था. दे हैव सेपरेशन 2a या 2l की सेपरेशन थी वहां पे. सेम एक्सियली हमने एक पॉइंट P लिया था. So due to this dipole we have to find the electric field at that point P. From the center, the distance of the dipole from the center to this point P is r, है ना. सिमिलर था इसी तरीके से. तो इसी तरीके से मैग्नेटिक डायपोल है. We have to find the magnetic dipole. We have to find the magnetic field at point P due to this magnetic dipole. What is magnetic dipole? A pair of opposite charges, opposite poles. एक साइड नॉर्थ पोल होगा, एक साइड साउथ पोल होगा. They have separation 2l की सेपरेशन होगी दोनों पोल्स के बीच में. So this is magnetic dipole. What is magnetic dipole moment? The magnitude of the strength of either the poles and the product of separation between them. तो m से रिप्रेजेंट करते हैं हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को. m इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ द पोल स्ट्रेंथ. दोनों जो पोल्स हैं उनके मैग्नीट्यूड, उनकी स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड इनटू द सेपरेशन बिटवीन देम. इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या था? The magnitude of the either charges, the product of the magnitude of the either charges and the separation between them. यानी कि q into 2l था वहां पे, यहाँ पे m into 2l है. That is P in case of electric dipole moment, and here it is m, magnetic dipole moment. ठीक है. So बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं. वे जो है ड्राइव करने का मैग्नेटिक फील्ड को फॉर अ मैग्नेटिक डायपोल वो सेम है as that you studied in electric dipole. So here we have a dipole, यानी कि एक बार मैग्नेट जहाँ पे एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है. दिस इज द मिड पॉइंट. पूरा जो इसका सेपरेशन होता है इट इज 2l लेंथ. ठीक है. मिड पॉइंट से इट इज l. देन फ्रॉम द मिड पॉइंट टू पॉइंट P जहाँ पे हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस मैग्नेटिक डायपोल, दैट सेपरेशन इज r. ठीक है. So now let us consider a bar magnet of length 2l. The magnetic field we have to find at this point P, which is the r distance apart from the dipole. Now magnetic field या magnetic force experienced per unit. Firstly north pole. तो north pole की वजह से जो force होगी per unit north pole है, इसका मतलब एक ही चार्ज होगा, एक ही magnetic pole strength होगी. What is this qm? Pole strength. ठीक है. magnitude of the pole strength qm, ये m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. So qm mu naught by 4 pi qm over r square minus l square. ठीक है. अब हमें इसकी वजह से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना कि np. तो np क्या होगा? दिस इज r, दिस इज l, तो r माइनस l. तो हमारे पास ये np डिस्टेंस आ जाएगा. ठीक है. तो अलोंग np कितना होगा? qm over r square minus l square to the whole square. ठीक है. नहीं, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, r माइनस l होगा. इज नॉट स्क्वायर, इट्स r माइनस l डिस्टेंस. np कितना होगा? ये पूरा कंप्लीट r है, दिस इज l. वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस. सो ये डिस्टेंस कितना होगा? इट्स r माइनस l. क्योंकि नीचे r स्क्वायर होता है इसलिए डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि np स्क्वायर. तो np कितना है? r माइनस l. तो ये हो जाएगा r माइनस l टू द होल स्क्वायर. इसी तरीके से सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड, द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट साउथ पोल. तो साउथ पोल के केस में डिस्टेंस कितना होगा? sp स्क्वायर यानी कि म्यू नॉट बाई 4 पाई qm. दोनों का जो पोल स्ट्रेंथ है दोनों चार्जेस का वो सिमिलर है. जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में जो मैग्नीट्यूड था दोनों चार्जेस का दैट इज सेम. पोलैरिटी डिफरेंट थी ना, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन चार्ज सेम था. इसी तरीके से पोल स्ट्रेंथ दोनों की सिमिलर है. qm ओवर डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस इज दिस डिस्टेंस फ्रॉम s टू p. तो r प्लस l. तो r प्लस l टू द होल स्क्वायर अलोंग ps होगा ये. So these are the forces exerted by the poles. Net, to find the net force, it's being q naught by mu naught qm by 4 pi, taking out common.
r minus 1 upon r minus l to the whole square minus 1 upon r plus l to the whole square. By opening it we have 4rl, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2rl इंटू 2 में, तो 2rl हमारा कितना हो जाएगा? अभी हमने बात की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, m इज इक्वल्स टू m इंटू 2l, ठीक है। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे 4rl को, 4rl इट्स बीइंग 2 इंटू 2rl and this is qm, this is qm. so qm या m, ये qm या m दोनों हो सकता है, पोल स्ट्रेंथ को हम m या qm से रिप्रेजेंट करते हैं, so qm इंटू इट्स 2 and l, ठीक है। तो 2l इंटू qm ये हो गया हमारा m, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड दिस इज r, तो इट्स 2mr, q नॉट बाई 4 पाई एज इट इज, नीचे जो डिस्टेंस है दैट इज r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। सिमिलरली दैट वी डिड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, सिमिलर था ऐसे ही, वहां पे p था q इंटू 2l, ये q इंटू 2a दैट इज p, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है m, ठीक है। इन वेक्टर फॉर्म इफ वी ओपन दिस, तो यहां से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, वी नेग्लेक्ट l, ठीक है। वैसे तो ये है, बट इफ वी टॉक अबाउट द शॉर्ट डाइपोल, इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल दैट इज r इज मच ग्रेटर देन l, तो उस केस में l को हम l स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, यहाँ से r रेज टू द पावर 4, ऊपर एक 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे r क्यूब बचेगा, तो कितना बचेगा एक्सेल के केस में? 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई m ओवर r क्यूब। इलेक्ट्रिक के केस में कितना था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन केस ऑफ एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल 2 kp बाय r क्यूब था ना बेटे, 2 kp ओवर r क्यूब। तो यहाँ पे भी यही है 2, दिस इज k, वहां पे k की वैल्यू थी 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैग्नेटिक के केस में k की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो 2 k m ओवर r क्यूब। वहां पे p है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, हियर वी हैव m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। बाकी सब चीजें सिमिलर, बस वहां पे चार्जेस थे, यहाँ पे मैग्नेटिक पोल्स हैं। सो दिस इज एक्सियल। सेम इक्वेटोरियल पे इफ वी हैव द मैग्नेटिक डाइपोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, दे हैव सेपरेशन 2l, फ्रॉम द सेंटर इट्स l, we took a point from the midpoint to a point p where we have to find the magnetic field due to this dipole. तो सिमिलर है जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में किया था। दिस इज r डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल, दिस इज l, वी कैन इजिली फाइंड दिस हाइपोटेनियस, दोनों ये हाइपोटेनियस सेम होंगी, रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। सो जो नॉर्थ पोल की वजह से जो फोर्स एक्सर्टेड होगी दैट इज इक्वल्स टू, या फोर्स पर यूनिट नॉर्थ पोल दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा? k म्यू नॉट बाय 4 पाई द पोल स्ट्रेंथ ड्यू टू नॉर्थ पोल qm ओवर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इट्स r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर along np। सिमिलरली दिस fs सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो fn इज इक्वल्स टू fs, बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड। सो दिस इज अ रिजल्टेंट फोर्स पर यूनिट पोल, सो वी स्प्लिट द रिजल्टेंट इनटू 2 कंपोनेंट्स, तो यहां से ये भी 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाएगा, ये भी 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाएगा। इनके जो साइन होंगे दे आर लाइक दिस, they have same magnitude and opposite direction, तो उनके जो sin component they become cancel out, only the cos component got added up, fn cos theta and fs cos theta, ठीक है। तो fn fs cos theta add हो जाएंगे because they have same magnitude, so fn plus fn that is 2 fn cos theta to the value of the magnitude of fn mu naught by 4 pi qm over r square plus l square, ठीक है। and cos theta, तो cos we have
base upon the hypotenuse. Base we have L, hypotenuse we have this distance. तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर हाफ है, नीचे पावर हो जाएगी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3/2. दिस इज 3/2. ठीक है, तो 2L इंटू QM, QM इंटू 2L हो जाएगा. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M. For short dipole, R is much greater than L, so we neglect L square. So this is the expression. ठीक है. इक्वेटोरियल के केस में क्या थी? In case of equatorial, it's Kp over R cube. यहाँ पे K M over R cube. This is electric dipole moment. This is magnetic dipole moment. यहाँ पे K की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पे K की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P over R cube. For the short, this is for short electric dipole, this is for short magnetic dipole. बाकी जो मेथड है to drive it, that is same for both. Right आशीष? ठीक है. Next we have potential energy of a magnetic dipole in a magnetic field. We have a magnetic field. ठीक है, uniform magnetic field. We have a dipole. We have a dipole. ठीक है, having south pole, north pole, 2L separation between them. ठीक है, and having theta angle with the magnetic field. Dipole जो है वो theta angle बना रहा है. So write all these things कि consider a magnetic dipole या bar magnet in uniform magnetic field, in uniform with theta angle with magnetic field. ठीक है. Then if what happen if the magnetic dipole is kept in uniform magnetic field, then what happen? It exerts force, है ना? What force it exerts? यहाँ पे जो force लगेगी वो कितनी लगेगी? Pole strength M या QM into B. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था? QE था, यहाँ पे क्या होगा? QB या QMB या सिंपल MB. This is pole strength, magnitude of pole strength. ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, but magnitude remains same. When the forces act parallel to each other, these are acting parallel na, in opposite directions, parallel but in opposite directions and having equal magnitude, then a couple generates which produces torque. तो जब भी मैग्नेटिक डाइपोल को या इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हो, मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, देन क्योंकि फोर्सेस, बिकॉज द फोर्सेस आर पैरेलल, equal in magnitude and acting in opposite direction, so it generates the couple which generates the torque, and torque is that physical quantity which produces the rotating effect. ठीक है ना? तो जब भी इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अक्रॉस फोर्स लगेगी, इट रोटेट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो रोटेट करेगा. तो डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल हो या मैग्नेटिक डाइपोल हो, दैट रोटेट, दैट प्रोड्यूसेस टॉर्क. तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क? What is the expression for torque? In case of electric dipole, so torque produced in magnetic dipole is torque is equals to M cross B, that is MB sin theta. है ना? In case of electric dipole, if electric dipole is kept in uniform electric field, then P cross E, PE sin theta. Remember ना? तो वहां पे P था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो बट व्हाट इज
टॉर्क, टॉर्क है क्या, जब भी फोर्स लगती है परपेंडिकुलरली देन द ऑब्जेक्ट रोटेट्स विच प्रोड्यूस अ टर्निंग इफेक्ट, अपनी एक्सिस के अराउंड वो क्या करता है, रोटेट करता है। इट में भी वो ऐसे भी रोटेट कर सकता है और वो ऐसे भी रोटेट कर सकता है। तो टॉर्क पे जब भी फोर्स लगेगी इस तरीके से इट रोटेट्स, ठीक है। जैसे मान लो थीटा एंगल है, थीटा 1 है, जब इस पे इस तरीके से फोर्स लगेगी इट रोटेट्स, इसका एंगल चेंज हो जाएगा ना फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो सपोज एंगल जो चेंज हो रहा है दैट इज स्मॉल चेंज, दैट इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो वी कंसीडर टर्व एज स्मॉल अमाउंट ऑफ टर्व, ठीक है। ये टर्व को सिंपल रहने दो, वर्क डन जो होगा इस पे दैट इज स्मॉल, बिकॉज मैग्नेटिक डाइपोल रोटेट्स, रोटेट कर रहा है, फोर्स लग रही है उस पे, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स वर्क इज टू बी डन, वर्क हो रहा है ना कुछ, सो दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो फोर्स एक्ट ऑन इट, तो फोर्स exerted on magnetic dipole, on the magnetic dipole by the magnetic field, by the magnetic field, and it displaces, ठीक है, it covers some angular displacement. So work is to be done, work is to be done which is stored in the form of potential energy, which is stored in the form of potential energy. So potential energy is equals to work done, so work done is equals to कितना होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुई तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू टर्व डी थीटा, ठीक है। तो राइट द एक्सप्रेशन, व्हाट इज टर्व, इट्स एम बी साइन थीटा डी थीटा, वी वुड इंटीग्रेट इट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है, थीटा 1 टू थीटा 2। पहले डाइपोल का कुछ ना कुछ एंगल था थीटा 1, जैसे ही परपेंडिकुलरली उस पे फोर्स लगी टॉर्क जनरेट हुआ, कुछ ना कुछ एंगल उसका चेंज हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा 1 टू थीटा 2। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एम बी कॉन्स्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, एम बी बाहर आ जाएगा, साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स आर फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है। So work done is equals to, we put the value, ठीक है। अगर हम माइनस को बाहर ले लें, if we consider the negative sign outside, तो माइनस एम बी, नेगेटिव वर्क डन होगा, माइनस एम बी इट्स कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। इफ यू टुक द नेगेटिव साइन इनसाइड, एक तो ये वर्क डन हो गया, माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, अगर नेगेटिव साइन को अंदर लोगे तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन की वजह से दिस बिकम्स पॉजिटिव एंड दिस बिकम्स नेगेटिव। सो दिस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, माइनस एम बी इट्स कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है, cos theta 2 minus cos theta 1. So this is potential energy. If in question it is asked कि find the work done या find the potential energy, so firstly you have to put कि initial angle क्या है। अगर initial angle 0 होगा, ठीक है, वो बिल्कुल पैरेलल था, अलाइन, आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स इट चेंजेस द एंगल, तो आपको वही वैल्यू पुट करनी है कि अगर इनिशियली 0 डिग्री है तो पहले से ही स्टेबल है, ठीक है, 0 डिग्री पुट करोगे थीटा 1 को, देन जो भी वैल्यू 90 या जो भी वैल्यू दे रखी होगी वो थीटा 2 की होगी, तो कॉस थीटा यहाँ पे 1 था और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इट बिकम्स 0, ठीक है, अंडरस्टूड ना। तो मैक्सिमम वर्क डन कब होगा,
इफ वी टॉक अबाउट द मैक्सिमम वर्क डन या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो कितने पे होगी? व्हेन थीटा 1 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस एम बी, या माइनस साइन अगर हम अंदर ले लें तो इट बिकम्स कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। तो कितना होगा? इट्स एम बी कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 90, इट्स 1 माइनस 0, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एम बी, ठीक है। और इफ बोथ आर 0 डिग्री देन, इफ बोथ आर 0 डिग्री देन 0 वर्क डन। इसका मतलब थीटा पहले भी 0 डिग्री है, फोर्स लगने के बाद भी वो 0 डिग्री रहा, दैट मीन्स नो वर्क इज डन, इसका मतलब कोई फोर्स लगी ही नहीं, ठीक है। और बोथ आर 90 डिग्री देन, इफ बोथ आर 90 डिग्री देन इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मैक्सिमम वर्क डन कब होगा? जब थीटा 1 0 डिग्री हो एंड थीटा 2 90 डिग्री, स्टेबल इक्विलिब्रियम। Understood? So that is work done and potential energy on the magnetic dipole. Next we have current loop as a magnetic dipole. If we have a current loop, ठीक है, जैसे electrons are revolving around the nucleus in the circular orbits, charge अगर moving है, flow of charge या motion of the charge per unit time is known as current. इसका मतलब उसकी जो orbit है that is considered as a current carrying conductor, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो अगर हम उसका ऊपर वाला पार्ट देखेंगे, ऊपर से अगर उसको देखेंगे, सपोज इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर उसका मोशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज के केस में विच मैग्नेटिक पोल वी हैव कंसीडर्ड? एंटी क्लॉकवाइज के केस में कौन सा होता है? हाँ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज के केस में इट बिकम्स नॉर्थ पोल, ठीक है। तो अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, वैसे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है क्लॉकवाइज तो द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन है करंट की, इट इज कंसिडर्ड एज नॉर्थ पोल। इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर इज क्लॉकवाइज देन इट इज कंसिडर्ड एज साउथ पोल। तो हम इसको ऊपर से देखेंगे, एक साइड से देखेंगे, इट बिकम्स नॉर्थ पोल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें दिखाई देगी करंट की। वहीं अगर नीचे वाली साइड से देखा जाएगा, इट बिकम्स क्लॉकवाइज, सो इट इज कंसिडर्ड एज साउथ पोल। सो इट इज नॉर्थ पोल, साउथ पोल हैविंग सम सेपरेशन, सो इट एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल। एम की तरह वो बिहेव करेगा। मैग्नेटिक डायपोल में भी क्या था? टू अपोजिट पोल्स हैविंग सम सेपरेशन, नॉर्थ और साउथ पोल होंगे एंड दे हैव सेपरेशन। सो अंडरस्टूड कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, इट बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल। दोनों पोल्स होंगे वहां पे, एग्जिस्ट करेंगे एंड हैविंग सम सेपरेशन बिटवीन देम। सो करंट लूप, सो करंट लूप, a current circular current carrying conductor acts as a magnetic dipole, magnetic dipole capital M, ठीक है, which is the product of, which is the product of, which is a product of what? Capital M is equals to its n number of turns, I current is flowing and having a cross sectional area. Its M is equals to NIA. So that magnetic moment, yani current loop as the magnetic dipole moment is equals to the product of number of turns, current flowing, the magnitude of current flowing, ठीक है,
magnitude of current flowing and cross sectional area of the current carrying conductor, ठीक है, and cross area of cross sectional area या cross sectional area of it, that is capital M is equals to NIA, ठीक है, N is a number of turns, I is a current flowing through the conductor, and A is the area of cross section या cross sectional area. Understood? So this is current loop as a magnetic dipole moment. Understood ना? ठीक है, क्योंकि अभी हमने किया था इन केस ऑफ एक्सियल या इक्वेटोरियल, ठीक है, ये रहा, अगर हम यहां से मल्टीप्लाई करें या इक्वेटोरियल का मल्टीप्लाई करें, इक्वेटोरियल केस में कहाँ है, इस केस में, सो हियर वी हैव आर, ठीक है, यहां से अगर हम आर से नीचे से मल्टीप्लाई कर दें, पाई से मल्टीप्लाई कर दें, तो इट बिकम्स पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वी कैन मल्टीप्लाई दैट विद एरिया एंड एन नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, so this is magnetic dipole moment. Next we have last topic of today's lecture, Gauss law in magnetism. We have studied Gauss law in electrostatics. What is that? क्या था? किसी भी एक गॉसियन सरफेस से, किसी भी एक क्लोज्ड सरफेस से कितना टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर आ रहा है? सो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कमिंग फ्रॉम अ क्लोज्ड सरफेस, कमिंग फ्रॉम अ गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू the 1 upon epsilon naught times the total charge, that is phi E is equals to surface integral of E dot ds is equals to q over epsilon naught. This is electric flux, dot product of E and ds, right Jatin, Ashish? So it is in electrostatics, but in magnetism it states that the total magnetic flux कितना होगा? B dot ds या B dot A, ठीक है ना, magnetic flux कितना होगा बेटे? It's being B dot A, ठीक है, it is a scalar quantity, so B dot A, dot product of magnetic field and the area vector. So it is a scalar quantity, electric flux. Magnetic flux is also the scalar quantity. Its SI unit is Weber. ठीक है? And so total magnetic flux, according to Gauss law in magnetism, total magnetic flux coming out from the closed surface, yeah, from the Gaussian surface is equal to 0, ठीक है, so phi B is equals to the surface integral of B dot ds, surface you can also define it कि surface integral of magnetic field and the area vector B dot ds is equals to 0. इसका मतलब किसी भी एक सरफेस से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर आता है? 0. नो मैग्नेटिक फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू द क्लोज सरफेस, राइट ना, क्योंकि यहाँ पे cos कितना होता है? It's being 90 degrees and cos 90 is equals to 0, ठीक है. So this is the Gauss law in magnetism. B dot ds, surface integral of B dot ds is equals to 0. So we end today's lecture over here. We have some terms related to magnetism,
and then classification of magnetic materials, which we covered it in tomorrow's lecture. So we end today's lecture.